So, I'll start with that camera. ओके मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी भवन। जब भी तुम घर जाते हो तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती कुछ नहीं होती बहुत अच्छा खाना मिलता है। एंड देन आई केम अप विद अ स्ट्रैटेजी। ऐसा 5 स्टेप का स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप किया पेपर पे लिख के। फर्स्ट वाला उबर था, गूगल, फिर अमेजॉन, फिर फेसबुक। This was फागू। ओ मेरे को याहू से भी फुल टाइम ऑफर था। Hey everyone, welcome back to the channel. This is another episode of Masala Chai. Today we have with us another chai fan, Saurabh. So Saurabh, Cheers. oh, he already knows it. He is actually a subscriber of the channel and we have been in touch for a few days now. Saurabh is currently working as a software engineer for a tech company in the Bay Area. I'll let him introduce himself. Hi guys, I'm Saurabh. I work at Google in Mountain View. I'm a huge chai fan, as Abhinav mentioned, and I'm also into hiking and bike trails. So yeah. And you're currently a software engineer at Google. This conversation is going to be about Saurabh's journey from... So I'm from Nasik. I was there till 10th, and उसके बाद मैं आंध्रा गया था 11th 12th, and फिर I went to NIT Bhopal, or as most people from NIT Bhopal know is at MANIT, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी भवन. Maulana Azad National Institute of Technology. Yeah. What was the Andhra? Why to Andhra? Oh, for 11th 12th, quota equivalent of Andhra. Oh, okay. So you were preparing for Yeah. NIT and JEE Yeah. and stuff. So you went to Andhra. You finished your 11th 12th there. Yep. Did you go to college or you were preparing mostly? So quota वाला system is कि college and prep is same. And then you went to MA NIT. Yep. And you took up what course? When I started my undergrad, I didn't have any clue कि कौन सा course is better. I have 2 sisters, both took computer science. So for Okay. me, I was like कि ठीक है कुछ अलग करता है। तो I took EC, Electronics and Communication. ECE. हाँ, Okay. Tele नहीं है, but Okay. yeah. But very quickly I realized कि like till my first year second semester मेरे को अपना लैपटॉप मिल गया था, and NIT भोपाल is great in the sense कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, सब लोग अपना अपना कर रहा है कुछ। तो मैं हॉस्टल में बैठ के, उसका हाई स्पीड इंटरनेट था, तो मैं खुद से कोडिंग करता था एंड मूवीज़ देखता था, सीरीज़ देखता था, एंड अटेंडेंस वाज नॉट अ ह्यूज इशू। मतलब लोग प्रॉक्सी लगा देते हैं या फिर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। I hope your professors are not watching this right now. Okay, so they were supportive of you learning what you actually want to learn. So ऐसा भी नहीं है बट ऐसा सिस्टम हो चुका है कि लाइक हाँ, वहाँ पे सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। self-reliant and they are Yeah. doing stuff. Yeah. Are you the person जिसने 6 साल की उम्र से व्हाइट हार्ट जूनियर वगैरह ज्वाइन किया था? Did you start learning? नहीं, मेरा फर्स्ट ईयर इन भोपाल आई वाज लाइक लर्निंग कि वेबसाइट कैसे बनती है, सर्वर कैसे अप होता है। आई वाज ट्राइंग माय हैंड एट रैंडम थिंग्स। एंड्रॉइड ऐप बना रहा हूँ, एक लोकल नेटवर्क पे सोशल नेटवर्क बना रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी रैंडम चीज़ें। But did you learn it somewhere like online कुछ ट्रेनिंग लेके? या सो आई स्टार्टेड फ्रॉम W3 स्कूल्स, फिर यूट्यूब के रैंडम ट्यूटोरियल, और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। मतलब मैं रात भर वही करता था कुछ दिन, क्योंकि आई थिंक वो उसमें फन होता है ना when you make sort of an Android app and it starts working, yeah. and the feeling Yeah, of accomplishment is next level. Yeah. That's probably started piquing your interest into definitely कि मुझे CS is something, but you stayed with EC. So that was not a choice. It was But you had the option to move to CS. इस पे एक स्टोरी ये है कि मेरा जो GPA रहता है रिलेटिव CGPA सारे NITs IITs में, कि मेरा था 8.5 which is good. Okay. बट CS के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में तुम स्विच कर सकते हो, ठीक है? Yes. तो 9 चाहिए था। Okay. एंड एक ही ऐसा सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, एनवायरमेंटल, जिसमें थोड़ा क्रिएटिव राइटिंग लगता है, एंड मेरा उसमें आ गया था 6 पॉइंटर, तो मेरा टोटल गिर गया 8.5 एंड मैं CS को स्विच नहीं कर पाया। Okay. एंड अगले 3 साल ऑल माई फ्रेंड्स, एवरीबडी अराउंड मी वाज CS, एंड सारे CS वाले बंदों को लगता था कि मैं तो CS का ही हूँ, तो मेरे को एग्जाम का मेरा सिलेबस पूछ रहा है। तो तू रह गया EC में? हाँ, मैं इसी में रह गया। EC कंप्लीट हुआ 4 साल, बहुत मुश्किल से, बहुत स्ट्रगल से, बट हाँ हो गया। all the 4 years तू कोडिंग कर रहा था? मैं तो कोडिंग कर रहा था अपना। And at that point did you end up getting a job? CS के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं NIT भोपाल में, एंड कुछ कंपनी CC वालों को भी अलाउ कर देते हैं, जैसे अमेजॉन। बट उस पॉइंट पे मैं एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर रहा था। मैं ज़्यादा लाइक हैंड्स ऑन स्टफ पे था कि ऐप बनाओ, वेबसाइट बनाओ, या जो भी करो, बट एल्गोरिथम्स वाज नॉट लाइक attractive thing to me. Is algorithms actually very difficult? सब लोग बोलते हैं कि if there is one course that you should be afraid of in CS, that's algorithms. So you need not be afraid of, but थोड़ा सा
टाइम एंड एफर्ट लगता है, एटलीस्ट लाइक 6 महीने लग जाते हैं अगर कोई एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है. एंड बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन भी चाहिए, क्योंकि एकदम वो पैशन नहीं होता है सबका कि आज लीड कोड खोल के एल्गोरिथम करते हैं. ओके, तब लीड कोड था क्या? तब भी था, अब भी आई थिंक इट्स मोर पॉपुलर. हाँ, अब ज़्यादा पॉपुलर है. So you got a job. But actually I got a job. It was in a small company in Bangalore. But तभी ऑलरेडी मेरा प्लान बन चुका था कि मास्टर्स करना है. एंड अगेन मेरा लाइफ बहुत रैंडम रहा है. मेरी दोनों बहन यहाँ पे थी, दोनों ने मास्टर्स किया, CS किया यहाँ पे. वो लोग टेक में थे. तो फॉर मी द डिफॉल्ट ऑप्शन इज कि तू मास्टर्स कर ले, और कुछ नहीं आ रहा है सोच में. वन ग्रेट थिंग दैट हैपेंड इन NIT भोपाल इज कि उनका कंप्यूटर साइंस कम्युनिटी वाज रियली अमेजिंग. कि मेरे आसपास जो भी, मतलब हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो मेस में भी सब लोग मेरे आसपास सब CS वाला, तो वो लोग दे वर वेरी सीरियस अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. एंड मेरे को इतना इंटरेस्ट तभी नहीं था, बाद में आया उनकी वजह से. टाइप्स. हाँ, वो लोग कोड शेफ पे या कोड फोर्सेस पे करते रहते थे. एंड मैं उनको खाने के लिए बुलाता था. देवर लाइक कि कॉन्टेस्ट चल रहा है. कोड शेफ, कोड फोर्सेस, टॉप कोडर, ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स है, सारे प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट होता है. एंड जब उस पर लोग करने लगता है तो कॉन्टेस्ट इज टाइम्ड. तो जैसे 1 घंटे में 4 क्वेश्चन करने हैं और सारा मुश्किल है, और जितना तुम करोगे उतना तुम्हारा रैंक बेटर होगा. तो एक सबमिट करके जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो जो एड्रेनलिन रश होता है, दैट इज अमेजिंग. वो एड्रेनलिन रश तेरे खाने के सामने कुछ नहीं था उनके. दे वर लाइक खाना वाना नहीं चाहिए. व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ यू अप्लाइंग फॉर योर मास्टर्स प्रोग्राम एंड हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज डिड यू अप्लाई टू? सो आई अप्लाइड टू 6 यूनिवर्सिटीज, 2 से 3 मॉडरेट, 2 एम्बिशियस. सारी तो याद नहीं है. GATech किया था. ओहो, ओके. जहाँ से तो रिजेक्ट आ गया. और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा मेरा मॉडरेट टू सेफ था, जो कि मिल गया. एंड वहाँ पे मैंने फाइनली मास्टर्स की. UPenn. ओके, पेन मसाला वाले. हाँ, तो वो भी नहीं आया. UTD किया था, वो आ गया था. एवरीथिंग वाज कंप्यूटर साइंस. या एवरीथिंग वाज कंप्यूटर साइंस, क्योंकि एट दैट पॉइंट इन लाइफ मेरे को क्लियर हो गया था कि CS ही करना है. So how did you justify this move from EC to CS? तो exactly, was it in your SOP? हाँ, तो मेरा SOP was all centered around कि कैसे मैंने खुद से सारा सीखा. एंड आई एम पैशनेट अबाउट कोडिंग एंड बिल्डिंग स्टफ. एंड ऑल्सो मेरी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी कंजर्वेटिव थी, क्योंकि मुझे You knew that you have to get in somehow. हाँ, तो जितने भी एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज़ थी, GATech या जो भी है, उनसे रिजेक्ट आ गया था. हाँ, तो उम्मीद भी नहीं थी मुझे. आई एम लाइक कि बस एक बार स्टैंप लग जाए ऑफिशियल कि कहीं से इसको CS कुछ तो आता है, जॉब मिल जाएगा. What was your GRE? GRE Score? 329. What was your TOEFL? 113. So 113 TOEFL, 329 GRE हाँ. and 8.5 GPA. मेरा तब 7.9 हो गया था 4th ईयर तक. Okay. वो भी बहुत मेहनत से आगे बढ़ा था. मेरा 3rd ईयर में CGPA था 6.0. तो मास्टर्स के लिए मैंने अप्लाई किया, मैंने SOP लिखा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिया. एंड मेरे को गाइड करने वाले काफ़ी लोग थे, बट उसमें भी मेरे को काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा था. मेरे को जनरली होता है लाइफ में. बट फाइनली वो सब बीट करके मेरे को एक एडमिट मिला. 3-4 एडमिट मिले थे. UTD, UFL, फिर एक SMU करके है, वो भी टेक्सास Southern में. Methodist Yes. वाला. Was it anything with scholarship? कोई भी एक था जिसमें scholarship या नहीं, इनमें से funding? किसी में भी नहीं था. शायद अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस, जहाँ पे मेरे दोनों सिस्टर्स ने किया है, वहाँ पे स्कॉलरशिप्स का फिर भी सीन था. एंड आई थिंक अभी धीरे धीरे हर यूनिवर्सिटी से कट रहा है. एंड अगर जितना तुम एम्बिशियस वाले में जाओगे उतना चांसेस कम है स्कॉलरशिप का. बट UFL जितना लोगों ने ऑब्जर्व किया एंड मैंने ऑब्जर्व किया, इज़ अ वेरी ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्कूल. वहाँ पे काफ़ी लोग. फी क्या थी उसकी? तो उसकी फ़ी है आई थिंक 9K पर सेमेस्टर हो जाता है. क्योंकि how many credits? 9 क्रेडिट्स, क्योंकि एक कोर्स है 3 क्रेडिट का. 3 कोर्स लेने पड़ते हैं एक सेमेस्टर में. 9 क्रेडिट्स. So 9 credits. So that's basically like 1,000 per. 1000 ऑलमोस्ट पर क्रेडिट. Okay, that's cheap because मैं थोड़ा राउंड ऑफ कर रहा हूँ, बट या. I went to Penn State and हाँ. I paid 1400 per credit, I guess. हाँ, तो ये UF का 30K का तो ट्यूशन हो जाता है. बाय डिफॉल्ट सबको वो लोग स्कॉलरशिप दे देते हैं 4.5K. हाँ, वो मैंने भी देखा था. I हाँ. think when I was applying, हाँ. UFL का एक ट्रेंड था कि हाँ. वो लोग 4,500-5 हजार की स्कॉलरशिप वो तो सबको दे देता है. एंड उसके अलावा लोगों की इंटर्नशिप लग जाती है, तो उससे एक सेमेस्टर निकल जाता है. लोग 2 तो 3 इंटर्नशिप कर रहे हैं. मेरे को एक तू 2 गया था इंटर्नशिप के लिए? मैं याहू में इंटर्न किया था, एंड उससे एक सेमेस्टर निकल गया था. Okay, and that was also through career fair and stuff. नहीं, तो ये स्टोरी रिवाइंड करते हैं. तो Rewind. Okay, let's take a step back. मैनेट ख़त्म हुआ. एंड
थर्ड ईयर में मैंने GSOC अप्लाई किया था, गूगल समर ऑफ कोड, एंड मैंने बहुत मेहनत की थी। GSOC is Google Summer of Code, and I think because you had some background, तू coding कर रहा था, you were So able to. GSOC इज अ ग्रेट थिंग जिनको प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है CS में, बट उनको कुछ तो चाहिए अपने रेज्यूमे के लिए। Okay. तो जिनको ओपन सोर्स में इंटरेस्ट है कि वो अप्लाई करे GSOC में, पूरे वर्ल्ड में कुछ 1000 to 2000 स्टूडेंट सिलेक्ट करता है। गूगल इज जस्ट द फंडिंग एंटिटी, It's वो लोग run गूगल by के लिए काम some- नहीं कर रहे हैं, बट Yeah. वो पेयर करते हैं स्टूडेंट्स एंड ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस को। तो वैसे मेरा हुआ था, तो 3 महीने अंडरग्रेड और मास्टर्स के बीच में जो गैप था वो मैंने किया GSOC। The link will be Yeah. in the description box for Yeah. anyone who wants to learn more about GSOC. It's a great opportunity Yeah. if you want to just build up your resume. एंड एज ए सेट कि मेरा लाइफ बहुत ही रैंडम रहा है, तो थर्ड ईयर के एंड में मैंने किया था GSOC अप्लाई। 1 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बट उसके बाद जिस प्रोजेक्ट के मैंने अप्लाई किया था वो स्क्रैप हो गया। तो 4th ईयर मैंने फिर से अप्लाई किया, क्योंकि मेरे को लगा था कि ठीक है कर ही देते हैं, और मैं लास्ट डे पे अप्लाई किया और 4th ईयर में फिर हो गया था GSOC Okay. में। तो वो मैंने किया एंड वो बाद में मेरे को बहुत काम आया। लाइक जब भी मैं रेज्यूमे देखता हूँ अपना, गूगल से पहले मेरे पास कुछ नहीं था, GSOC था एंड एकेडमिक प्रोजेक्ट्स थे, एंड वर्क एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं था क्योंकि मैं मैनेजर से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया था। How did that get you into Yahoo though? हाँ, तो जैसे ही GSOC ख़त्म हुआ मैं मास्टर्स के लिए आया यहाँ पे। सितंबर मैं अगस्त में आया, सितंबर अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया इंटर्नशिप अप्लाई करना, क्योंकि आई हैड दिस प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ नेटवर्क अराउंड मी, जो लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड है फुल टाइम और इंटर्नशिप्स पे, एंड सब लोग पहले से बता रहे हैं कि भाई तो स्टार्ट कर दे अप्लाई करना। एंड मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया अक्टूबर दिसंबर तक मैंने स्टार्ट किया इंटर्नशिप अप्लाई करना, एंड कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब एकदम सन्नाटा। और मेरे रूममेट भी सब ऐसे ही है कि वो लोग सुबह उठ के मेल देख रहे हैं, 3 रिजेक्ट हर दिन। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, एंड एक पॉइंट पे फिर मैंने ऑनलाइन अप्लाई करना ही बंद कर दिया। आई एम लाइक कि ये नहीं हो रहा है और मेरे को तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना पड़ेगा। तो दिसंबर तक मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, एंड तभी मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया लीड कोड पैटर्न्स। तो medium.com/leetcodepatterns अभी भी चलता है वो। Link will again be in the description box. हाँ. तो अभी भी you are posting there regularly. सो आई एम नॉट पोस्टिंग एज रेगुलरली, बट आर्टिकल्स जो अभी तक है उस सीरीज में वो वहाँ पे है, एंड वो काफ़ी लोगों को इंटरव्यू प्रेप में हेल्प कर रही है। तो लोग लिंक्डइन पे डालते रहते हैं कि और लिखो और Oh, nice. आर्टिकल्स। Okay. तो हाँ, मेरे को कहीं से कुछ इंटर्नशिप के तो कॉल आ नहीं रहे थे, क्योंकि मैं EC का था, और वो एक मेजर फैक्टर मेरे को लगता है। बट एंड मेजर फैक्टर ये है कि मेरा रेज्यूमे इतना अच्छा नहीं था, एक्सेप्ट फॉर GSOC, और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो दिसंबर This is him being very modest, okay? तो ये था मेरे को कि जितने लोग मेरे को जानते हैं, एंड मैं अगर खुद से असेसमेंट करूँ, अगर मेरे को कोई मैजिकली प्लेस कर दे किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप या फुल टाइम, आई हैड फुल कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगा। Because you had the 4 years का हाँ. fun coding वाला. हाँ, बट ब्लॉकर ये था इंटरव्यू, एंड ये मेरे को लगता है काफ़ी लोगों का रहता है। रेज्यूमे पे इंटरव्यू मिलते हैं, and if you have हाँ. EC on your resume, हाँ. that starts. तो थोड़ा सा ब्लॉकर था, बट जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ में, थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग लगाओ तो हो जाता है सॉल्व। तो दिसंबर में मैं इसलिए फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि आई बिलीव आई एम अ गुड डिसेंट प्रोग्रामर, बट इंटरव्यूज नहीं आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है मेरे बारे में। तो मैं लीड कोड पैटर्न स्टार्ट किया, एंड वो मेरा लीड कोड प्रैक्टिस मैंने तब से स्टार्ट किया दिसंबर से। तो 1 महीना बैठ के मैंने ऐसे 50 प्रॉब्लम्स किए थे, तो मैंने उस पे से कुछ पैटर्न्स मेरे को दिखे, तो मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चालू किया। Okay. एंड हर पोस्ट ऐसे मैं रात को बैठ के लिख देता था, और मैं रेडिट और लिंक्डइन पे पोस्ट करने लगा था। तो लिंक्डइन पे प्रेजेंस थोड़ी बनने लगी, एंड मैं रिक्रूटर्स को डायरेक्ट पिंग करता था। तो मेरे को वैसे ऊबर का इंटरव्यू मिला कि उसने बोला तुम्हारा तो अच्छा है ब्लॉग। That was your first हाँ, interview. ऊबर का इंटर्नशिप। तो उसके पहले भी इंटेल से मिला था मेरे को, क्योंकि मेरा EC का बैकग्राउंड था। दैट वाज अ फोन इंटरव्यू, एंड मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया हुआ था। तो जैन में मेरे को फिडेसा का भी मिला था, उसका कोडिंग इंटरव्यू हुआ, बट ये सब दिसंबर के बाद हुआ था। फिडेसा का तो ऑनलाइन ही हुआ था, एंड उसमें इंटरव्यू तक गया मैं, एंड फिर उनका ऑफर भी आ गया था। तो जैन में फाइनली मेरा एकदम स्ट्रेस डाउन हो गया था, तब से मैं एकदम चिल्ड होकर इंटरव्यू कर रहा था। एंड दैट्स द बेस्ट जोन टू बी इन, कि अगर तुम्हारे You have पास something एक बैकअप as a ऑफर है, backup. फिर तुम थोड़ा अच्छे से करते हो। Sure, हाँ, yeah. तो एक तो मेरे को ऊबर इंटरव्यू मिला था, वो मैंने बॉम्ब किया, बट एटलीस्ट मेरे को इंटरव्यू मिला, एंड दैट वाज लाइक कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। तुम अपना लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क बनाओ, कुछ ना कुछ अच्छा करो दूसरों के लिए, तो तुम्हारे लिए भी कुछ होता है। फिर मेरे रूममेट को फेसबुक इंटरव्यू मिला था, तो मैंने उससे रिक्रूटर का ईमेल लिया,
एंड तब तक मेरे को हैकेथॉन्स में बहुत इंटरेस्ट है. मैं इस पूरे ड्यूरेशन में यूएस में भी हैकेथॉन्स जाते रहता था. ओके. तो एक हैकेथॉन में हम लोग जीते थे. तो वो मेरे को पता है कि फेसबुक हैकेथॉन्स देखता है रेज्यूमे पे. ये सब ट्राइबल नॉलेज है. तो मैंने उसको एकदम टॉप पे डाल दिया और मैं रिक्रूटर को मेल कर दिया फेसबुक वाली को. तो उसने इंटरव्यू दे दिया. वो भी मेरा नहीं हुआ था इंटर्नशिप के टाइम पे, बट एटलीस्ट आई गॉट दैट इंटरव्यू. तो कोल्ड ईमेलिंग, लिंक्डइन मैसेजिंग, एंड देन ऑल्सो बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो तो आउटसाइड. लिंक्डइन पे यूएफ वाले जो सीनियर और मैनेट वाले सीनियर है, मैनेट वाले तो कम ही थे यहाँ पे, यूएफ बहुत सारे थे. सो दे नोटिस्ड एंड तो उनने नोटिस भी नहीं किया. तो ये है फंडा कि अगर तुम किसी को रेफरल मांगोगे लिंक्डइन पे, मोस्ट लाइकली वो लोग हेल्प कर देंगे. एंड उनके लिए भी इंसेंटिव है क्योंकि रेफरल बोनस है. आता है. तो ऐसे ही याहू में तो 2 वीक में 2 इंटरव्यू हुए. याहू का आ गया ऑफर. सिट्रिक वाज इन मायामी फ्लोरिडा, याहू वाज इन बे एरिया. और जब मैं अंडरग्रेड में था तब मैंने एक रात भर बैठ के सिलिकॉन वैली बिंज किया था. तब मैंने कि सिलिकॉन वैली जाना है. Okay, so you then ended up in Yahoo, and at that point, so offers कहाँ से थे? You had Uber, Fidessa, Citrix. Oh, Uber Yahoo. you did not. Uber I You- got rejected, Facebook rejected. फिर Yahoo होने के बाद मैंने Google भी ट्राई किया था, उसका भी इंटरव्यू आया बट रिजेक्ट. So Yahoo internship done. You go back to UFL. Complete Yahoo your इंटर्नशिप में course. जो 3 महीने मैंने यहाँ पे स्पेंड किया सनीवेल में, दैट वाज द बेस्ट. मतलब गेंसविल ऐसा थोड़ा सा गाँव टाइप का यूनिवर्सिटी टाउन और है. Bay Area is Bay Area is बड़ा amazing. गाँव, बहुत बड़ा गाँव है. टेक कंपनीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, टेक कल्चर है. तो उस I टाइम think there are a lot of opportunities. That is बहुत. like a big deal about Yes. being in the Bay Area. ऑल्सो जो भी मेरे को रेज्यूमे एडवाइस पूछता मैं उनको बोलता हूँ कि गूगल करो करियर कप गुड रेज्यूमे. एक गेल Career मैकडॉवेल Cub. करियर कप Career Cup पे good करियर resume. कप गुड रेज्यूमे. तो ये ऑथर है गेल मैकडॉवेल जिसने क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू लिखा है. वो भी Okay. अच्छी बुक है. तो उसका रेज्यूमे टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किया. उसी टेम्पलेट में मैंने सब अपना डाल दिया. वो काफ़ी सिंपलिस्टिक फॉर्मेट है. तो ऑन द आइस इट्स ईजी. When you said कि तू पहले से like first year से ये सब कोडिंग वगैरह कर रहा था, then you did all this internship, right? वो वाला एक्सपीरियंस कुछ काम आया? ऐसा कभी हुआ? डेफिनेटली क्योंकि तो इट वाज नॉट लाइक कि तूने थ्योरी पढ़ी लेकिन वो कभी काम नहीं आई. सो जैसे कुछ थिथियरी तुरंत काम नहीं आती. जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंसिपल्स कोर्स है. वो लोग बेसिक स्ट्रक्चर समझाते हैं, इंट्यूशन समझाते हैं कि लैंग्वेजेस ऐसे क्यों है, कैसे बनती है, खुद से एक बनवाते हैं लैंग्वेज. तो मे बी तुम डायरेक्टली वो अप्लाई नहीं करोगे बट एक इंट्यूशन बन जाता है. जैसे एल्गोरिथम्स करते हैं लोग, तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि एफिशिएंट कोड कैसे लिखे ओके. एज कम्पेयर टू अगर तुमने कभी एल्गोरिथम्स या ओएस का कोर्स लिया ही नहीं है एंड तुम खुद से अपना अपना कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो जो फॉर्मल सीएस एजुकेशन है वो काम आ जाता है. यूनिवर्सिटी गए वापस, एवरीथिंग फिनिश्ड, तो उसके बाद अप्लाइंग. या आई स्टार्टेड अप्लाइंग बट वापस मेरे को इंटरव्यूज नहीं आ रहे थे यार. मतलब मेरे को पता था कि इंटरव्यूज आने चाहिए बट फिर भी नहीं आ रहे थे. तो मैं इंडिया में दिसंबर चला गया था. मैं चिल मारा 1 महीना एंड मैं वापस आ गया था. दिस वाज लाइक ये मेरा आखिरी सेमेस्टर है अब. एंड नवंबर में मैंने ऑलरेडी मेरा फर्स्ट फुल टाइम इंटरव्यू दिया था ब्लूमबर्ग के साथ ऑन साइट न्यूयॉर्क. एंड मैं लीड कोड किया हुआ था, सब किया हुआ था, बट मैंने इंटरव्यू किया एंड 2 दिन में रिजेक्ट आ गया. तो दैट वाज अ बिग शॉकर फॉर मी क्योंकि मेरे को तो फुल टाइम चाहिए ग्रेजुएट होने से पहले. वीसा का इशू रहता है, बहुत स्ट्रेस होता है, जितना लेट हो उतना. बाय द वे, इफ एनीवन फील्स कि सौरभ बहुत फास्ट बात कर रहा है तो स्पीड को थोड़ा 0.75x कर लेना. आई थिंक मेरा ऐसा ही है. कोड इतना एफिशिएंट होता है उसी तरह से बहुत जल्दी बोलता भी है. ये वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना चाहिए रन टाइम कम करने के लिए. एनीवे, मैं मजाक कर रहा नहीं यार, मेरे को पता है मैं काफ़ी फास्ट बोलता हूँ. तो ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू के बाद आई रियलाइज कि कुछ तो बदलना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, चेंज की जरूरत है अभी जिंदगी में. दिसंबर में मैं गया इंडिया के, मैं लीड कोड कर लेता हूँ बट कुछ नहीं हो पाया घर इंडिया जाने. अच्छा, इंडिया जा रहा था, देन यू थॉट कि घर पे जाके कर लूंगा. बट जब भी तुम घर कोड करने इंडिया क्यों गए? नहीं यार, मैं तो ऐसे घर गया था चिल मारने. एंड जब भी तुम घर जाते हो तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती. बहुत अच्छा खाना मिलता है. बट इट गेव मी पर्सपेक्टिव. मैं बहुत चिल होकर सोच रहा था कि मैंने कहाँ गड़बड़ की, क्या की. एंड देन आई केम अप विद अ स्ट्रैटेजी. ऐसा 5 स्टेप का स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप किया पेपर पे लिख के कि ये मैं करूँगा, अब मैं बदलूंगा अपना अप्रोच. एंड उसके बाद मैं 4 ऑन साइड दिया. मेरे को 4 फुल टाइम ऑफर्स है. What were those full time offers? तो मेरा फर्स्ट वाला उबर था, फिर गूगल, फिर अमेजॉन, फिर फेसबुक. This was फागू. ओ, मेरे को याहू से भी फुल टाइम ऑफर था. ओ, आया था. हाँ. तो बेसिकली वो 5 स्टेप मैंने पेपर पे ये लिखा था कि जब लोग लीड कोड करता
people are very metrics focused and Metrics as in कितना कोड हुआ, कितना कितने लीड कोड प्रॉब्लम्स किए, कितना सबमिट किया, कितना कोड लिखा. वही मेरा भी प्रॉब्लम था. उससे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब भी इंटरव्यू में प्रॉब्लम कोई पूछता है क्वेश्चन, तो मैं इमीडिएटली उसका लाइक नियरेस्ट नेबर सर्च कर रहा हूँ कि किस क्वेश्चन से मैच हो रहा है. बट ये एक ओरिजिनल थॉट प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो रहा है. तो इसका मेरा सोल्यूशन ये था कि सबसे पहली बात तो लीड कोड पे क्वेश्चन देखो एंड फिर पेपर पे टेस्ट केस लिख लो. लीड कोड पे ऑलरेडी टेस्ट केस होता है तो कोई लिखता नहीं है. एंड ये वाइट बोर्ड में बहुत काम आता है. टेस्ट केस खुद से लिखो एंड फिर इंट्यूशन डेवलप करो, एल्गोरिथम लिखो, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टेट करो एंड फिर पेपर पे या डॉक पे कोड लिख लो एंड अपना जो टेस्ट केस है वो लेके कोड को मेंटली वॉक थ्रू कर लो एंड जो भी इश्यूज है वो फिक्स कर दो. तो ये अप्रोच बहुत अच्छे से काम करता है. अब जब everything is being done, you are working as a SWE, as a software engineer here. I do not know what your day-to-day looks like, right? So what would you be doing on a regular day? So on a regular day, I write C++ code, काफ़ी backend infra focused है, large scale distributed systems sort of. And the kind of toy projects I was doing in undergrad was very different. Okay. शायद उसका direct connection भी नहीं बनेगा, but एज एन इंजीनियर इन जनरल मेरे को लगता है कि जुगाड़ वाला जो स्किल है वो बहुत काम आता है. Okay. तो जो भी जुगाड़ मैंने वहाँ लगाया वो यहाँ applicable है. But it's just that the scale has now amplified to a great extent. Any pro tips you would like to tell to anyone who's watching this video? Anything that you feel could be super useful? Couple of things. फर्स्ट कि जब मैं जैसे याहू इंटर्न कर रहा था यहाँ पे एंड बे एरिया में बहुत सारी टेक कंपनीज है, तो वहाँ पे लाइक मेरा थिंकिंग स्टार्ट हुआ कि शायद मेरे को भी अप्लाई करना चाहिए. एट दैट पॉइंट लाइक गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम गूगल और फेसबुक वाज बियॉन्ड माई थॉट प्रोसेस. फिर मेरे जो पीयर्स है दे स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स एंड उन पीयर्स के साथ मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया, उनके साथ मैंने लीड कोड किया, तो मेंटल बैरियर कम हो जाता है. तो आई थिंक कि जैसे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे अभी वो अपनी स्टार्ट ऑफ द जर्नी में, तो जब वो लोग एंड देखते हैं, एंड तो नहीं कहूँगा बट एक इंटरमीडिएट स्टेज देखते हैं, तो दे गेट इंटिमिडेटेड बट धीरे धीरे वो प्रोसेस चेंज हो जाता है. Okay. तो सबसे लाइक बेस्ट एडवाइस इज कि डेफिनेटली बिलीव इन योर सेल्फ, लाइक कीप ट्राइंग and like keep trying different approaches. कीप ट्राइंग डिफरेंट अप्रोचेस. जैसे यूएस में मास्टर्स में जनरल प्रॉब्लम है कि जॉब लेना इतना आसान नहीं है, स्पेशली ऑन वीसा. एंड जब लोग आते हैं यहाँ पे तो रियलाइज नहीं होता है ये, एंड लोग बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, रोज सुबह उठो रिजेक्शन ईमेल्स. हाँ, बट जो मैंने देखा है कि जो लोग एक पॉइंट पे केयर करना बंद कर देता है कि ये तो नॉर्मल है, अब पार्ट ऑफ डेली लाइफ है, Just keep applying. हाँ, तो उनको आ जाता है कहीं ना कहीं से. What's that one superpower you wish you had? That I was a duck in Bay Trail. यार वो डक बहुत सिंपलिस्टिक एंड पीसफुल लाइफ जीता है. Oh, उस तरह से. Okay. That was it for today's episode. Please let us know in the comment section if you would want us to make more such videos. Saurabh also has a YouTube channel. It's called Active Life Project that he started during the pandemic. I'm not sure agar you are consistently posting there, but he will start posting a lot of stuff. Saurabh's LinkedIn will also be in the description box below. If you like this video for any reason, do hit the like button. बहुत धूप आ रही है यार. Do hit the like button. If you have not subscribed to the channel yet, please subscribe to the channel and just let us know in the comment section कि आपको ये कैसा लगा and if there is any feedback. Thank you so much for doing this. Thanks. And we'll hopefully see Saurabh in another episode of Masala Chai or some other vlog. Bike ride वाला vlog कर लेंगे. पूरी पैंट की लग गई वाट. कोई नहीं यार, धो लेना.